Very good morning, my dear students of class 10th. I am Poonam Prasad, here with the chapter number 2 of your economics sectors of Indian economy. The today topic that we are going to deal with is infrastructure of an economy. Students, sometimes we are saying that infrastructure of America is very good. I am not going to America, but let's we talk on Indian perspective. That infrastructure of Gujarat is quite good. Pune is very wonderful, or you can say uh, Allahabad or Prayagraj is moving towards to improve its infrastructure, or Chandigarh is having a very good infrastructure. What does infrastructure meant about it? Fine. हम कहते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ कंट्री इज डिपेंड लार्जली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. So the question is in front of that what in front of us is that what is infrastructure. So children, basically, if we are talking about the services or what we are talking about the economic activities of a country, it is largely depend upon the good infrastructure of an economy. When a country is having its good infrastructure, obviously it is moving towards a good economic development of a country, right? जैसे कि अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, economic infrastructure, it includes the services from the public utilities. You have heard about the power supply, you have heard about telecommunication, water supply, sanitation is there, sewage system is there. Then we are called the garbage disposal. Fine, these are the public utility services. Then if we are talking about the means of transportation is there, then multi-purpose projects like dams are there, canal systems are there. The different means of transportation like road, waterways, aviations, these when they are effective, we are saying that these are termed to be the economic infrastructure. So economic infrastructure basically, or infrastructure is what? It means that it a foundation. This is the base of, or you can say the foundation of all the activities of economy. That economy which are dealing with the primary, secondary and service sectors also बेटा. ये एक ऐसा physical framework है of all the facilities provided to the economic activities, जिससे कि goods and services are provided to the public children. एक simple example, आज as a consumer I am getting all the things because of the good road facilities provided in a city or in a state, है ना. ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ास्टर होता है ह्यूमन लाइफ्स या लिविंग लाइफ के अलावा, जो एक हम बात कहते हैं, दिस इज़ अबाउट द इकोनॉमिक जो डैमेजेस होते हैं वो अल्टीमेटली लीड करता है. जैसे नहीं कि रोड टूट गई, अर्थक्वेक आया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैम्पर, कम्युनिकेशन सिस्टम हैम्पर, इसका सीधा असर क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट इफ़ेक्ट करता है ना. तो अगर हमने कहा कि जैसे रोड्स आर नॉट प्रॉपर, कैन वी हैव अ गुड ट्रेड और गुड ट्रांसपोर्टेशन? नो बेटा. अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने के बावजूद भी if the roadways are not effective, ultimately it leads towards the hamper of the trading system of a country, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो. इवन दो सिंपल द स्ट्रीट लाइट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. हम लोग कहते हैं ना स्ट्रीट लाइट, जैसे कि गांव और शहर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? गांव और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ आर सेम, बोथ आर डिफरेंट. अगर गांव शहर की तरह हो जाए तो हम ये कहेंगे कि गांव जो है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, या ग्रास रूट लेवल पे जो सरकारें हैं वो डेवलपमेंट कर रही हैं. अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि इंदौर को गुड सिटी का अवार्ड मिला है. काफ़ी स्वच्छ सिटी यानी साफ़ सुथरी सिटी के लिए उनको दिया गया है.
इंदौर को. तो दिस मीन्स what it is about the infrastructure. It also includes all the services, all the goods which are provided to the people beta. So there should need a good facilities students. Fine. So it also includes the banking, the insurance, constructions. You have heard about the skyscrapers. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप लोगों ने देखी होगी, डैम्स देखा, ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. आपको बताऊं, चंडीगढ़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चंडीगढ़ की खूबसूरती का क्या है, वहाँ का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. कहते हैं कि वहाँ पे जो बारिश का पानी है वो रुकता नहीं है, वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे. तो ऑल दीज शोज़ अबाउट व्हाट, इट शोज़ अबाउट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. इकोनॉमिस्ट का ये मानना है चिल्ड्रन कि मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली दे आर फॉरवर्ड और दे आर साउंड. वाई? बिकॉज ऑफ द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि यातायात के नियम भी शामिल होते हैं. And the developing and underdeveloped countries are little bit poor as compared to the developed nation because of the poor, or you can say the backward infrastructure. ये एक important issue है student. So we can say that infrastructure is quite important for the good economy of a country. Students, the very important point in front of you is how can we generate the income to our country. एक सबसे एज अ स्टूडेंट, अगर एज अ टीचर मैं आपसे, यू ऑल आर द स्टूडेंट, और मैं आपसे पूछूं कि हम लोग क्या ऐसा करें, या इकोनॉमिस्ट को या सरकार को ऐसा, इकोनॉमिस्ट को सरकार को क्या ऐसे सजेशंस देने चाहिए, ये रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी चाहिए जिससे कि नेशन का इनकम जनरेट हो सके. तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. चिल्ड्रन, we also facilitate the countries with many opportunities in the field of banking system or finances, insurance, power, transportation, communication, etc. It means that all the walk of the life should be effective. तभी हम कह सकते कि generation of income होगा, यानी कि हम कहें कि डेवलपमेंट इन ऑल द 3 सेक्टर्स. यहाँ पे सिर्फ सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट की बात नहीं है बेटा. यहाँ पे बात किसकी है, हमें डेवलपमेंट अगर हम प्राइमरी सेक्टर में करेंगे, जिसके ऊपर भारत का, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया इज़ डिपेंड लार्जली ऑन द प्राइमरी सेक्टर. और प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट होगा. प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन है ये, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ. तो इसका डेवलपमेंट अल्टीमेटली लीड करेगा द सेकेंडरी एज वेल एज योर टर्शरी सेक्टर डेवलपमेंट. तो इन तीनों में अगर इक्वली कॉन्सेंट्रेट करके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर आए और नए नए आयामों, नए नए तरीक़ों से एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करे, तो अल्टीमेटली इट्स लीड्स टूवर्ड्स द इनकम ऑफ अ कंट्री. चिल्ड्रन, then we have to improve the human resource more effective and efficient, because the human resource is only the you can say the asset of an country. और इसके लिए उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव और उनको और ज़्यादा इंगेज करना इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग इनकम, इसके लिए बहुत ज़रूरी है टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन, टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन अ कंट्री. Because health care facilities and education system is quite important in terms of infrastructure, children. So this is quite important. अगर हमें कंट्री के डेवलपमेंट को, अगर हमें इनकम जनरेट करेगा कौन, तो वो करेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स. और अगर ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव नहीं होगा तो बेटा वी आर नॉट एबल टू जनरेट द इनकम टू द कंट्री. इज दैट क्लियर? देन द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट. सर्विस सेक्टर का जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ BPO, IT, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हुआ करता था कि टीचर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, दीज आर द थिंग्स. बट आजकल लोग इंटरटेनर भी बन रहे हैं.
वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, वो शेफ्स बनना चाहते हैं, वो हॉस्पिटैलिटी और यू कैन से होटल इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं. दे वांटेड टू हैव टू गो टू एज अ टूर ऑपरेटर्स और द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑल्सो. तो इट मीन्स मोर वो बैंकिंग सिस्टम में दे आर मोर एंड दे वांटेड मोर एंड मोर एंगेज इनटू द बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस सेक्टर्स. वो आज की जो सिनेरियो ऑफ अ जॉब है वो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, चाहे इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो या बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट हो या आईटी, खासकर आईटी के आने की वजह से इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो साइंसेज हैं वो अल्टीमेटली आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट आयामों को जो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट है उसको उसने ओपन किया है फॉर द पीपल. Children, service sector is one of the fastest growing sectors of Indian economy if we are talking about. But if we want to have a good growth of a country, we must put equal effect, or rather the government has to put equal efforts to all the sectors of economy to make it effective and efficient, and the economy of India should be fruitful. Children, बहुत ज़रूरी है. जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर मार्क्स आपको लाने हैं तो मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या, आपको सारे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना. तो ऐसे कंडीशन में वी हैव टू गो फॉर इट कि हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि तीनों सेक्टर्स को हमने इक्वली देखना है, इक्वली हमें इफ़ेक्टिव बनाना है. क्वेश्चन आता है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. चिल्ड्रन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट मीन्स द प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and tertiary sector, their contribution are different in terms of GDP, in terms of employment, in terms of different issues or different aspects. ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी टू सोसाइटी, है ना, टाइम टू टाइम. अगर हम ये कहें कि आज भारत में सबसे कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट गेनर है या लोग उसमें एम्प्लॉयड है या लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो आपका आंसर सीधा होगा प्राइमरी सेक्टर. बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मैडम जीडीपी में तो प्राइमरी का इतना ज़्यादा नहीं है, जीडीपी में तो टर्शरी का है. एग्जैक्टली बेटा, द आउट ऑफ द थ्री सेक्टर्स जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शरी का, सेकेंडरी का और प्राइमरी का ये ग्रेजुअली वेरिएशन आया था फ्रॉम 1951 से लेकर 1998 तक. 1991 की अगर हम सेंसस की बात करें तो अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिफरेंट होता है. एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, एक बड़ा ही वेरिएशन है इसमें, प्राइमरी का, देन टर्शरी का, देन सेकेंडरी का. मैंने डाटा इस पर प्रोवाइड किया है. अगर हम बात करें, स्टिल द प्राइमरी सेक्टर आर द लार्जर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर. बहुत सारे रीजंस हैं. चिल्ड्रन, एग्रेरियन इकोनॉमी चूँकि भारत की थी और भारत की है, और प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन भी रहा है प्राइमरी सेक्टर का, जिसमें कि आपकी फ़िशिंग है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री इज़ देयर, देन वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सेक्टर इज़ योर एग्रीकल्चर. तो मोस्टली जो जनसंख्या थी वो किस में लोग इन्वॉल्व थे, वर्क फोर्स किस में इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व था इन टर्म्स ऑफ योर प्राइमरी सेक्टर. लेकिन प्राइमरी सेक्टर चूँकि हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा था, और वहाँ पे आने के बाद लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था या लोगों का जो रेज ऑफ इनकम था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स, जिसके वजह से लोगों ने क्या किया, दे मूव फ्रॉम द सिटीज़ टू द टाउन्स, मोस्टली द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, for searching of what? Searching of jobs, basically in tertiary and as well as in the secondary sector. अब चूँकि गांव में इलिटरेसी है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुअर है, socially the people are you can say backward in terms of education, in terms of your social. तो ultimately it leads towards, हम ये कह सकते हैं कि they are not having as that much type of their skill. They are not termed to be the skilled laborers. In terms of illiteracy, in terms of literacy, or you can say not gaining any type of, बात उनके सिर्फ इस पॉइंट पे है. ऐसा नहीं है
कि वो काम नहीं करना चाहते या काम नहीं, बिकॉज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है गांव में। उसके वजह से जब वो शहरों में मूव करते हैं, और शहरों में खासकर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जब जहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले ही डिमांड किसकी होती है? डिमांड होती है कि क्या वो लिटरेट है, क्या वो स्किल्ड है, क्या उन्होंने कभी पहले काम किया है, क्या उन्होंने मशीनों को कभी पहले इस्तेमाल किया है, क्या उन्होंने डिग्रीज़ ली हैं, क्या उन्होंने डिप्लोमा होल्ड किया है। ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेटस ही पुअर है तो वो वहाँ पे बड़ी बमुश्किल उन्होंने कुछ क्लासेस पढ़ाई की, या जो इकोनॉमिक सिनेरियो उनको आगे पढ़ने नहीं दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो दे आर टर्म टू बी अनट्रेन्ड बेटा, तो उनकी नज़र में वो अनस्किल्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पे उनको जो जॉब मिलती भी है तो वो काफ़ी कम वेजेस पे मिलती है, लेकिन हमारे पास अदर अल्टरनेटिव्स नहीं है, तो लोग वहाँ पे काम करते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे सीखना शुरू करते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू स्किल्ड लेबर्स और एज़ कम्पेयर टू लिटरेट लेबर्स, वहाँ पे जो अनस्किल्ड और इलिटरेट लेबर्स होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली क्या होता है, देन अगेन दे टर्न्ड अप टू, और तुम्हें पता है कि आप लोगों को पता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रॉब्लम आर देयर, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, वो वापस से टर्न अप हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लिटरेसी और स्किलफुल का कोई मतलब नहीं बन पाता। धीरे धीरे व्यक्ति काम सीखता है, और उससे वो क्या होता है, जैसे फार्मर है, अगर वो फार्मिंग है तो अपने माता पिता को देख के वो फार्मिंग करना सीखता है ना। आर्टिजन्स है, वो अपने कारपेंटर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे जगहों पे जहाँ पे आर्टिजन्स ग्रुप है जो कि काम अपने जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसको अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो मूर्तिकार हो, चाहे वो अदर कारपेंटर्स और वीवर्स लाइक दैट। तो अल्टीमेटली वहाँ पे, या फिशिंग, इस तरीके से हम जो बात कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का वर्कफोर्स आज इसीलिए है क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या अभी भी बेटा वो लिटरेसी अटेंड नहीं कर पाई, या उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाया, या उनको दे आर नॉट डिग्री होल्डर्स। और समटाइम्स वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के जो नॉर्म्स हैं टू गेन दैट पर्टिकुलर वैकेंसी और टू गेन दैट पर्टिकुलर जॉब, उस वैकेंसी को फुलफ़िल नहीं कर पाते, उस जॉब को फुलफ़िल नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली क्या होता है, दे हैव टू टर्न बैक टू द प्राइमरी सेक्टर। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इन टर्म्स ऑफ द, आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देयरफॉर वी कैन से, अगर मैंने अभी आपको एक डाटा दिया है 1951 चिल्ड्रन, प्राइमरी सेक्टर 72.1% था, मैंने पहले ही बताया। सेकेंडरी सेक्टर 10.7, ये 1951 का डाटा है। 1951 में टर्शियरी सेक्टर 17.2%, यानी सबसे लार्जेस्ट जो लीडिंग था उस टाइम पे प्राइमरी था। प्राइमरी में आया 40 इयर्स के बाद गिरावट आई, और उसमें बट फिर भी वो 72 से 65.5 ज़्यादा नहीं थी गिरावट, लेकिन हम कह सकते हैं टर्शियरी सेक्टर बढ़ा 20.0, then secondary sector 14.5%. So children, all these data shows about that the three sectors are unequally in terms of its distribution, in terms of GDP, in terms of employment generating. But we have to create more and more employment, खासकर in rural India, जिससे कि रूरल इंडिया अपने सेल्फ रिलायंट बन सके। और अगर हम, माइग्रेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ गेट रिड फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। सो टिल देन बेटा गो अहेड विद द वीडियो, आप लोग वीडियोज़ को काइंडली वॉच इट एंड गो फॉर द नोट्स and also for the important issues related with the topic. Fine. Till then children, thank you very much.